morning, students. So we are back with our next lecture, and in the last, as you all know, that in the last lecture I began with the second chapter of the book Flamingo, that is Lost Spring. So I did the beginning part and I explained what there are two parts in that chapter and what those two parts are based upon and what is the connecting theme between the two, and what we understood that the connecting theme was the stolen childhood, the lost childhood. Okay, all right. Now let us proceed. There is, okay, so all of you please turn to page number 14 of your book Flamingo, and those who have the complete English translation, all right, and others who don't have the book, the text is here on the screen. All right, so I'm beginning with the lines. Just see, where is it? There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. So who is saying? In the last class, what did we understand? That there was one student, one person, one character named Sahib, and he was searching for something in the garbage dumps, and as the author came, and because she's a narrator also, so she came and she asked Sahib, she knew who Sahib was, so she came and she asked that boy that, listen, what are you doing? And he did not have any answer for it, so he just said that I have nothing else to do. So the author simply says, then why don't you go to school? Because that is what we also say in our normal daily lives when we see any beggar, a small child who is begging on the street. So what does Sahib reply? He says, there is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. So this was a kind of slap on the author's face. Why? On Annie's young face. Why? Because when she said that please go to school, she herself thought that कितना खोखला, कितना hollow ये advice है जो हम अभी साहिब को दे रहे हैं. Because बोलना आसान है, गरीब बच्चे को स्कूल जाओ और स्कूल भेजो, स्कूल ये करो, but then किस circumstances से वो गुजर रहा है, क्या वो स्कूल जा पाएगा या नहीं पाएगा, all those things we generally are very unaware of. Alright, so what the author says, if I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. So just imagine, हम लोग का आदत है, हम लोग हमेशा हर चीज़ मजाक में लेते हैं. So अगर रोड में किसी को हम लोग बोलते हैं जाओ स्कूल जाओ, and he replies that स्कूल है ही नहीं, तो जब बनेगा तब जाएंगे, तो हम लोग मजाक में बोल देते हैं जब हम बनाएंगे तब आओगे क्या स्कूल. So we just said, we always say this in a funny manner, in a joking manner, and similarly here also the author also says, read the lines, I ask half joking. वो मजाक में बोलती है कि जब हम स्कूल बनाएंगे तो आओगे. And what does Sahib reply? Yes, he says. A few days later, now see the following lines. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? So just look at the innocence of a child. He is just not knowing this fact that the author, the narrator was joking. That day she just made a joke that हम स्कूल बनाएंगे तो आओगे. She never meant that. But this Sahib, he was so innocent that he took this seriously, and what did the following day or days after, he came and he asked the author that क्या आप स्कूल आपका तैयार है? It takes longer to build a school, I say. Look at the lines. Embarrassed at having made a promise that was not meant. So यहाँ पर जो narrator है, जो author है, she is saying कि सुनो स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है, इतना तुरंत स्कूल नहीं बन जाता है. बट एट द सेम टाइम, ये भले ये साहिब को ये वर्ड्स बोल रही है, बट एट द सेम टाइम शी इज एम्बैरेस्ड. व्हाट डज एम्बैरेस मीन्स? शर्मिंदा होना, शर्म आना. शी फेल्ट बैड, शी फेल्ट एम्बैरेस्ड. उसको शर्म आया ऑथर के नरेटर को. वाई? बिकॉज जो भी वो प्रॉमिस बनाई थी, ये जो भी वो प्रॉमिस की थी, वो सारा कुछ को 1% भी she did not mean it. See what are the lines here? Embarrassed at having made a promise that was not meant. जिसको वो मीन ही नहीं की थी, उसको शर्म आया इस चीज पे कि एक बच्चे को एक ऐसा प्रॉमिस कर दी जो वो मीन तक नहीं की थी. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So please understand, underline those lines. But promises like mine मतलब जैसे हम एक इंसान और हम एक प्रॉमिस की कि सुनो तुम स्कूल जाओ, सुनो तुम ये करो,
वैसा प्रॉमिस हम तुम्हारे लिए स्कूल बना देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, ऐसा प्रॉमिस अबाउंड, अबाउंड मीन्स जस्ट अंडरलाइन एंड राइट इंक्रीजेज। पहले हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं सेंटेंस को, फिर हम तुम लोग को एक बार में समझाएंगे। बट प्रोमिसेस लाइक माइन का क्या मतलब है? उसके जैसा प्रॉमिस, खोखला प्रॉमिस, बिना मीन किया जाने वाला प्रॉमिस, वो प्रॉमिस अबाउंड, इंक्रीज होता है, बढ़ते ही जाता है, इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में। किसके कोने में? ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मीन्स सैड, विदाउट लाइफ, लाइफलेस, धुंधला। ओके, ऐसा ब्लीक वर्ल्ड, उसका ऐसा दुनिया में, उसका उसके जैसा धुंधला दुनिया में, उसका गरीब दुनिया में, उसका सैड दुनिया में, ये सारा प्रोमिसेस, ऐसा खोखला प्रोमिसेस हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। और क्यों बढ़ते ही जा रहा है? क्योंकि वी हैव अंडरस्टूड एंड वी सी इट एवरी डे इन आवर डेली लाइफ्स दैट गरीब को बहुत सारा वादा किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या एक नॉर्मल इंसान हो। गरीब को हम लोग बहुत वादा करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट जब करने पे बात आती है तो कुछ % ऑफ द सिटीजन या ऑफ द पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं या करते हैं, बाकी सिर्फ खोखले प्रोमिसेस में रह जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऑथर वही बोल रही है। नाउ वील रीड द लाइन वंस मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise. उसको शर्म आया उस प्रॉमिस, वो ऐसा प्रॉमिस बनाइए विच वॉज नॉट मेंट, जो वो मीन नहीं की। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरे जैसा खोखला प्रॉमिस अबाउंड, बढ़ते ही जाता है, इंक्रीज होते जाता है, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके जैसा उसका जो सैड और उसका बेबस दुनिया है, उसके हर एक कोने में मेरे जैसा खोखला प्रॉमिस हर बार बढ़ते जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। Alright, and especially in a country like India, our country, we know that poverty rate is increasing day by day. No matter how much we see rich people around us, or how much we see rich songs which are being made in a rich background, we cannot ignore this fact that our country has majority, the population, they are not from well-to-do families, they are poor and they need support. Alright, okay. Now proceed to the next line. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. So he gives his full name. Now ये question बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, so प्लीज उसको मार्क कर लेना जो हम आगे लाइंस पढ़ाएंगे कि साहिब आलम का मीनिंग क्या था. जस्ट मार्क इट, ओके, एंड लिसन फर्स्ट. He does not know that it means what it means. So ऑथर हम लोग से बोल रही है, रीडर्स से, कि वो बहुत खुशी से अनाउंस तो करता है कि साहिब आलम है उसका नाम, बट क्या उसको पता है कि वो क्या मीन करता है? नो. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, प्लीज अंडरलाइन द लाइन्स, ओके, जस्ट कीप ऑन अंडरलाइनिंग till where I tell you to stop. If he knew its meaning, Lord of Universe, Sahib, Lord, आलम, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स. तो अगर उसको ये बात पता होता, if he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have hard time believing it. Obviously, अगर उसको पता होता, just keep on underlining, okay? अगर उसको पता होता कि उसके नाम का मतलब है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे दुनिया का, इस पूरे संसार का शहंशाह, तो क्या उसको यकीन होता? नो. ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट. हार्ड टाइम, उसको दिक्कत होता, उसको डिफिकल्टी होता इस बात को समझने में दैट उसका नाम साहिब आलम है, उसका नाम का मतलब इस पूरे दुनिया का राजा है, इस पूरे संसार का राजा है, क्योंकि रियलिटी में वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका. ऑलराइट, ओके. Now see the following lines. Unaware of what his name represents. Unaware, अनजान बने हुए, क्योंकि उसको पता नहीं था उसका नाम का क्या मतलब है. He roams the street with his friends, an army of barefoot boys, keep on underlining, barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Okay, till here underline. क्या यहाँ पर ऑथर बोलना चाह रही है रीडर्स से कि साहिब जैसा लड़का जो बहुत खुशी से बोलता है उसका नाम साहिब आलम है, पर बेचारे को ये तक नहीं पता है कि उसके नाम का मतलब इस दुनिया का शहंशाह या इस दुनिया का राजा होता है. वो बिल्कुल अनजान बने हुए, अनअवेयर, ही इज जस्ट व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स. ही इज रोमिंग हियर एंड देयर ऑन द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स. और उसका फ्रेंड्स कौन कौन था? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज.
एक ग्रुप था लड़कों का जो नंगे पैर रोड पर चले आते थे. वी सी दिस इन आवर डेली लाइव्स ऑल्सो. जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं जाते हैं तो हम लोग को एक झुंड दिखता है, एक ग्रुप दिखता है बच्चों का जो नंगे पैर रोड पे घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं और कुछ कुछ उठा रहे हैं और खा रहे हैं. सो सिमिलरली वैसे ही साहिब अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे ही घूमता था. एंड हु वुड अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स. इनके साहिब और उसके फ्रेंड्स सारे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते थे जो सुबह सुबह निकल जाते थे रोड पे और शाम होते होते सब गायब हो जाते थे, अपने घर चल जाते थे. Over the months, so till here you are clear. So what does Sahib-e-Alam mean? The Lord of the universe, the Master of the universe. समझ में आया? Okay. Over the months, I have come to recognize each of them. So narrator or the author Anis Jung बोल रही है कि over the months, बहुत सारा जो months पार हो गया तब हम सब हर एक बच्चे को recognize करने लगे. Recognize पहचानने लगे. Okay, जानने लगे, समझने लगे. Alright. Till here you have understood? Okay. Now, okay, so proceed to the next paragraph. Why aren't you wearing chappals? I ask one. So, chappal you all know, slippers. So, she's saying कि तुम लोग कोई भी चप्पल क्यों नहीं पहने हो, तुम लोग कोई भी कुछ पैर में फुटवेयर क्यों नहीं पहने हो. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. So, what did we understand कि इसकी जो मम्मी थी वो उसको चप्पल पहनने दे नहीं रही है. वो उसके घर के रैक पे रखा हुआ है, शेल्फ पे रखा हुआ है और उसकी मम्मी नीचे उतार के नहीं दी है, इसलिए ये नंगे पैर निकल गया है घूमने. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हुम? साहिब एंड बॉयज लाइक हिम जो गरीब थे, जो पुअर पीपल थे, जो कचरे से अपना कुछ कुछ नीड का सामान उठाते थे. ओके, ऑलराइट. नाउ even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. So what is he saying? Okay, so what does he say? When one boy answers that my mother did not get me the shoes from the shelf, इसलिए हम पहने नहीं, another suddenly just adds there that अगर देती भी तो if she did he would throw them off. अगर वो देती भी इसकी मम्मी तो ये जरूर उसको फेंक देता. एंड ही जो बच्चा ये बात बोलता है वो शूज ऐसा पहना है जो मैच तक नहीं कर रहा है. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो एक बच्चा वहां पर बोलता है कि हमको भी शूज चाहिए. और वो बच्चा कौन है? जो आज तक who has never owned a pair. Look at the lines. Who has never owned a pair in his own life. अपने पूरे जिंदगी में एक भी जोड़ा चप्पल वो कभी नहीं पहना है, कभी नहीं उसके पास आया है. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. So अब ऑथर हम लोग को अपना फीडबैक दे रही है, अपना राय दे रही है, एनालिसिस करके बता रही है कि इतना दिन से हम कंट्री में इधर उधर जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे बिना चप्पल का बेयरफुट चलते आ रहे हैं रोड पे. बेयरफुट, बेयर नंगा, फुट पैर. सो नंगे पैर वो लोग रोड पे चलते आ रहे हैं. सिटीज हो, विलेज रोड्स हो, लुक एट द लाइन्स, वहां नंगे पैर ही चलते आ रहे हैं. अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन. इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी बट द ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. ऐसा नहीं है उन लोग के पास पैसा नहीं है, उन लोगों को भीख मांगने से या कहीं से भी 50 रुपए 100 रुपए मिल जाएगा और वो लोग खरीद सकते हैं चप्पल. बट ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी की वजह से वो लोग ऐसे नंगे पैर चल रहे. इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी. It is not the lack of money. Underline that. But underline again, a tradition to stay barefoot. ये लोग एक तरह का एक ट्रेडिशन बना लिए, एक रस्म बना लिए, एक तरीका बना लिए कि जितने भी भिखारी है वो नंगे पैर रहेंगे, जितने भी ऐसे कचरा चुनने वाले हैं वो नंगे पैर रहेंगे. इन लोग एक ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं. यही एक एक्सप्लेनेशन इज वन एक्सप्लेनेशन. सी द लाइन अगेन. इट इज नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. सो ऑथर बोल रही है कि ये नरेटर बोल रही है कि एक एक्सप्लेनेशन ये निकलता है कि पैसे की तो कमी है नहीं बट ट्रेडिशन हो सकता है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो यहाँ पर ये बोल रही है, जो अभी हम बोले कि ऑथर वंडर कर रही है और वो बोल रही है क्या ये हम बस ऐसा सोच ही रहे हैं कि क्या ये एक्सक्यूज है, क्या एक ये बहाना है जो उन लोग का गरीबी का हालत दिखाने के लिए वो लोग यूज कर रहा है. ये किस कदर वो लोग गरीबी में धंसा हुआ है इस चीज का एहसास दिलाने के लिए यूज कर रहा है.
So what did we understand so far? That Annie's Jung, the narrator or the author, he is very embarrassed because वो एक खोखला प्रॉमिस बनाई है, बट वो उसको एहसास होता है कि ऐसा खोखला प्रॉमिस, ऐसा हॉलो प्रोमिसेस बहुत ज्यादा है साहिब जैसे बच्चों के दुनिया में, बिकॉज सब आके प्रॉमिस करके जाते हैं एंड कोई फुलफिल नहीं करते हैं. देन शी ऑल्सो सीज दैट साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, जो उसके नेचर से, जो उसके रहने के तरीके से, उसका नाम का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो उसके रहने के तरीके गरीबी से कंप्लीट ऑपोजिट है. ऑलराइट, सो ये सब समझते हैं. देन वी अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर नरेटर नोटिस करती है कि सारे के सारे बच्चे जो है वो बेयर फुट वॉक कर रहे हैं, और ये बेयर फुट कोई गरीबी का या फिर एक पैसे की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि एक सिलसिला चला आ रहा था, ट्रेडिशन चला आ रहा था, और उन लोग का बस यही तरीका था, क्योंकि वो लोग गरीबी दिखाना चाहते थे, इसके थ्रू गरीबी का एक बहाना नंगे पैर को बना के वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे. ऑलराइट, सो टिल हियर वी हैव कम टू द हाफ till the half of the first part of the chapter Lost Spring. Okay, from the next lecture we'll proceed forward. So till then, please read the chapter, understand what I am trying to say, and if you have any doubts, just keep it with yourself. We'll discuss it as the college opens. Okay, thank you.